Hello everybody, welcome back to the informative world. Hope you all are fine. So our today's topic is unitary method. Okay, unitary method is one of my favorites. तो सबका favorite method होता है, right? So here it consists of two basic operations, multiplication and division. So I have two basic formulas for those two basic ऑपरेशन. सो वैल्यू ऑफ वन, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि अगर एक की वैल्यू फाइंड करनी है सो यू विल डिवाइड द गिवन वैल्यू बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? वैल्यू ऑफ वन. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन यू नीड टू डिवाइड द गिवन वैल्यू बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स. दैट इज व्हाई इट इज रिटन वैल्यू ऑफ वन इज इक्वल्स टू गिवन वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ओके, एक की वैल्यू के लिए वी नो द फॉर्मूला ना, गिवन वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. अब बहुत सारों की वैल्यू के लिए व्हाट वी विल डू? फॉर वैल्यू ऑफ मैनी वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. ओह, आई एम रियली सॉरी, आई हैव रिटन मैनी ओवर हियर. इट इज वन मिनट. ओके, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी we are going to multiply the value of 1 by the required number of units. I hope the formulas are understood. And one more thing, एक और चीज़ याद रखनी चाहिए. while solving the problems related to unitary method you need to follow these basic steps. Identify the given facts. of course हर problem में पहले facts ही निकालने होते हैं. then identify what is to be found out, यानी कि क्या निकाला जाना है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको पहचानें. फाइंड द वैल्यू ऑफ अ यूनिट बाय डिवाइडिंग. एक की यूनिट निकालने के लिए डिवाइड करें. ओके, in order to find the value of one unit you need to divide. Okay, I hope you all understood. Okay, so let's begin solving the word problems related to this particular concept, topic. Okay, so this is our first word problem. Okay, let's read it very carefully. So the word problem says that if the cost of 6 chocolates is 210 rupees, find the value of 4 chocolates. यानी कि अगर 6 चॉकलेट का जो कॉस्ट है, जो दाम है वो 210 रुपये है, तो फिर 4 चॉकलेट का क्या दाम होगा, कितना दाम होगा. ओके, सो ऑफ कोर्स ये तो एक ऑब्वियस चीज़ है कि 4 के दाम को निकालने के लिए हमें पहले एक का दाम पता लगाना हुआ, यानी कि what is the cost of one chocolate. We need to find out the cost of one chocolate, then only we will be able to find out the cost of 4 chocolates, isn't it? So for finding out the cost of one, we all know what do we have to do? We have to divide. Okay, so I hope you all remember the formulas na. Value of 1 is equals to given value upon the number of articles. Okay, so let's write down the statement. Yes, now I am writing down the statements over here. I hope they are visible. Yeah, they are. So now let me write down these statements now. Okay, so पहले तो क्या लिखेंगे? Cost of 6 chocolates कितना है? Cost of 6 chocolates is ₹210, है ना. अब cost of 1 chocolate कितना होगा? अगर फॉर्मूला पता है तो सब बता देंगे. कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट विल बी 210 अपॉन 6. ठीक है, 210 अपॉन 6 विल बी माई कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट. ठीक है, इनको डिवाइड करके पता चल जाएगा. ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18. कितना बचा? 3 बचा है ना. 5 ज़ा 30. तो एक चॉकलेट का क्या कॉस्ट हो गया? 35. अब हमें 4 चॉकलेट्स का दाम पता करना है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई. 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 इज वेरी गुड, इट इज 14. सो 140 इज द कॉस्ट ऑफ 4 चॉकलेट्स. फाइन. और चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो. ये जो वे है वो कम समय खाता है. It is less time consuming. So I'm talking about this one. 210 upon 6 into 4. सारे ऑपरेशन एक बार में हो गए. 2 3 ज़ा 6
2s are 4. Okay, now 3 1s are 3 and 70s are 210. So 70 multiplied by 2 will give you 140. So hence we have successfully solved this problem. Okay, I think it is visible. एक मिनट, तो ये है पूरी प्रॉब्लम. इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नो इश्यूज फॉर दैट. बस एक छोटे सा, just a second, let me adjust it. Okay, now I hope it is visible. 1 minute. Yes, oh, so sorry. Now it is visible, right? अब दिख रहा होगा. Okay, so this is the whole problem and I hope you all have done it. आप सब ने कर लिया है. Very nice. Okay, so here comes our next problem. ठीक है, यहाँ आई हमारी दूसरी प्रॉब्लम. Okay, so this is our next word problem. A bus travels 240 km in 6 hours. How long will it take to travel 360 km? तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं? They are saying कि एक बस है जो कि 240 किलोमीटर 6 घंटे में कवर करती है. अब उसको कितना समय लगेगा 360 किलोमीटर कवर करने में? यानी कि what we have to do here also, of course, obviously यहाँ भी यूनिटरी मेथड ही अप्लाई होगा. ओके, सो लेट्स स्टेटमेंट लिखते हैं. ठीक है, सो आई एम गोना राइट टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय द बस, टेकन बाय द ओके बस टू कवर कितने किलोमीटर? 240 किलोमीटर. कितना टाइम लिया उसने? Yes, it took 6 hours to do this. Now, of course, अगर हमें ये पता लगाना है कि उसे 360 किलोमीटर कितना टाइम लिया 360 किलोमीटर कवर करने में, ऑफ कोर्स हमें पहले 1 किलोमीटर का फाइंड करना होगा कि 1 किलोमीटर में उसे कितना टाइम लगता है पूरा कवर करने में, डिस्टेंस कवर करने में. ओके, 1 किलोमीटर में वो उसको कितना टाइम लगता है. So first we need to find out for that. So time taken by the bus to cover 1 kilometer. Total distance of 1 kilometer. चलो ठीक है, फॉर्मूला पता है ना. एक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला याद है सबको? Yes, given value upon number of articles हमें याद है, of course, right? So it will be 6 upon 240. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं. We can simplify it. 6 1 6, 40 is 240. So 1 upon 4 हो गया. तो क्या मिल गया हमें? I'm really sorry. No, yes, it is right. 1 upon 4 hours. We got 1 upon 40 hours. I'm really sorry for that. We got 1 upon 40 hours. ठीक है, सिंप्लीफाइड हो गया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमें 360 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा कवर करने, अब हमें वो निकालना है. टाइम टेकन बाय द बस, टाइम टेकन बाय द बस to cover 360 kilometer. So 1 upon 40 multiplied by what? कितना? जितना कि हमें जिसके लिए टाइम हमें निकालना है 360. फाइन, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. 4 1 4, 4 9 36. So how much time will it take to cover 360 kilometer? 9 hours. तो उसको 360 किलोमीटर कवर करने में 9 घंटे लगेंगे. इज दैट क्लियर? सोल्यूशन विजिबल नहीं है क्या? ओके, वेट अ मिनट. ओके, जस्ट लुक, हैव अ लुक हियर. मैं अभी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की. इफ यू कैन सी, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द सोल्यूशन.
आई नो बहुत नीचे तक चला गया, दैट इज वाई. ओके, सो नाउ आई होप इट इज विजिबल एंड दिस इज द solution of the given word problem. Okay, thank you. 1 minute. Yes, so this is our next problem. Raj earns 1500 rupees in 10 days. How much will he earn in 45 days? तो देखो, राज जो है वो 1500 रुपीज़ 10 दिन में कमाता है. अब वो 45 डेज में कितना कमाएगा? तो हेयर ऑल्सो लेट मी टेल यू द सोल्यूशन. यहाँ भी ऑफ कोर्स यूनिटरी मेथड ही लगेगा. ओके, ठीक है. सो ऑफ कोर्स हमें पहले 1 डे का निकालना होगा कि एक दिन में वो कितना कमाता है, तभी हम 10 डेज का पता लगा पाएंगे. ओके, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द सोल्यूशन. तो पहले स्टेटमेंट्स लिखेंगे. ओहो, money earned by Raj in 10 days. कितना अर्न किया उसने 10 दिन में? 1500, 1500. मनी earned by Raj in 1 day. Money earned by Raj in 1 day. So what it will become? It will become, एक दिन के निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होगा 1500 अपॉन 10. फाइन. सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा 150. तो वो एक दिन में 150 रुपीज़ अर्न करता है. अब नाउ दे आर आस्किंग हाउ मच विल ही अर्न इन 45 डेज. सो 150. लेट मी राइट द स्टेटमेंट. मनी अर्न बाय राज इन 45 डेज. अब सिंस वी नो कि वो 150 रुपीज़ अर्न करता है एक दिन में, तो अब 45 डेज को बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पहले दिन की कमाई से. ओके, सो let's do it. First let's write the statement. Money earned by Raj in 45 days. क्या होगा? Can anybody tell? Yes, it will be 150 into 45. So 150 multiplied by 45 is nothing but 6750. तो कितना अर्न करेगा 45 डेज में? 6750 रुपीज़ वो 45 डेज में अर्न करेगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो इफ यू enjoyed this video, please like, share, subscribe and keep watching the informative world. Thank you.